Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as in our previous lectures, we were talking about different computer applications in economics, statistics, and econometrics. Um, Overall, in all types of social sciences, like we can use these techniques in psychology, we can use it in what we can say in other fields about sociology or political science. Wherever we need statistic analysis, so we can use these softwares. Even the fields like chemistry and other science subjects where analysis are involved, where statistics are involved, people use these techniques. So we have discussed about ARIMA. This is autoregressive integrated moving average, and we have also used a software that's called Greeted to come up with a real-time analysis of ARIMA software with use of at-hand data. And then we have also used Excel and other softwares that are frequently used for statistical analysis and econometric techniques. Today, we would be trying to come up with a regression analysis and a regression model. We will be starting from a linear regression in the simplest form, which is known as simple linear regression model. A simple linear regression model is the one in which we have a dependent variable. By dependent variable, I mean that is the variable that is receiving the effect, and the other one would be an independent variable, which is the variable that affects the dependent variable. Let's suppose we have this regression model. The regression model, let's suppose it is a yi let's suppose yi is equal to alpha naught plus alpha 1 x1 plus mu mu. Now let me make it clear. This is known as the dependent variable. This is known as the dependent variable. This alpha naught, this is known as the intercept factor. And the intercept factor, by intercept factor we mean the average value. I mean, intercept tells us about the value of the dependent variable that is that exists even in the absence of the independent variable. This alpha 1, this is known as the what we can, this is the coefficient, or this is called as the slope factor. And this x1, this is the independent variable. This is the independent variable. And this mu, this is the error term. This error term, it tells us about the changes in the dependent variable, or we can say it tells us about the changes in the dependent variable that are not caused by the variable that are existing in the model. Let me let me explain it with the help of a real time example. Let's suppose this y is known as consumption of the household. This known as the this is let's suppose this is this is the consumption of a household. This is the consumption of an individual. So this is the dependent variable. This is the dependent variable, and the dependent variable is consumption of the individual. This alpha 1, this is intercept value, and this x1, let's suppose this is income of the household. This is a income of the household. This is a income of the household. Now we can see, and ये हमारी रोजमर्रा के मामूल भी हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इनकम जीरो भी होता है, लेकिन फिर भी उनका कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है. लेट्स सपोज यहाँ पर पहले मैं ये कर लेता हूँ कि ये जो मेरे साथ पोर्शन है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला, ये मैं खत्म कर लेता हूँ. लेट्स सपोज बंदी का जीरो कंजम्पशन, जीरो इनकम है, लेकिन फिर भी उसका कोई ना कोई कंजम्पशन होगा. सो उस कंजम्पशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट फैक्टर. मतलब ये हमारे साथ वो कंजम्पशन है, ये हमारे साथ वो कंजम्पशन है
जो कि इन द एब्सेंस ऑफ इनकम भी होता है, तो उसको हम इंटरेस्ट फैक्टर से शो करते हैं। फिर विद प्रेजेंस ऑफ इनकम जो हमारे साथ वो आ जाता है कंजम्पशन, तो उस इफेक्ट को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप फैक्टर। This alpha one, this is known as the slope factor। तो अब हम let's suppose ये x1 हमारा जो इनकम है, इस अल्फा वन का मतलब ये है कि हमारा जो इनकम है अगर इसमें 1 यूनिट चेंज आ रहा है तो उसका मतलब तो हमारे साथ इससे जो कंजम्पशन है, इस कंजम्पशन में हमारे साथ अल्फा वन टाइम इट मींस के स्लोप टाइम इसमें इफेक्ट आएगा। और ये जो म्यू है, ये म्यू हमें शो करता है या हमें बताता है about the changes in the dependent variable, I mean the changes in consumption that are not caused by the variables that are existing in the regression model। क्योंकि कुछ औकात कुछ टाइम में हम ऐसे भी करते हैं कि हमारे साथ एक अदर सपोज कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन को इफेक्ट करता है, हाउस होल्ड साइज उसको इफेक्ट कर लेता है, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स है वो भी आपके कंजम्पशन को इफेक्ट करता है, आपका इनकम उसको इफेक्ट करता है, आपकी किड्स की एजुकेशन इसको इफेक्ट करती है। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड। लेकिन लेट्स सपोज आपने इनकम भी लिया हुआ है, आपने फैमिली साइज भी लिया हुआ है, आपने उस बंदे का जो है जिस जगह पे रह रहा है, रूरल अर्बन या जो आपके साथ मेट्रोपॉलिटन एरियाज कहाँ पे रह रहा है वो आपने लिया है। लेकिन लेट्स सपोज एक वेरिएबल है कि उस बंदे के घर में एक इलनेस है और वो इलनेस आपने मॉडल में शो नहीं किया हुआ है। तो अब वो जो जिस वेरिएबल की वजह से आपका कंजम्पशन इफेक्ट होता है लेकिन आपने उसको अपने मॉडल में शो नहीं किया है, तो इफेक्ट चला जाता है हमारे साथ एरर टर्म में, इस म्यू में वो चला जाता है। तो ये हमारे साथ एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल का हमारे साथ क्या है, उसका एक टिपिकल मॉडल है कि हम बनाते किस तरह है मैथमेटिकली, और अब हम क्या करेंगे, इसको हम थ्रू सॉफ्टवेयर जो है एनालिसिस के जरिए जो है हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस डेटा के मुनासिबत से, चूंकि मेरे साथ जो डेटा है ये कोविड रिलेटेड डेटा है, दिस डेटा इज रिलेटेड विद एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, और फिर हम उसको चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एज, क्या सीन आ रहा है, एज के साथ एंटीबॉडी के क्या हुए, और प्लस ब्लड ग्रुप वगैरह इस किस्म का डेटा है मेरे पास। एंड फिर जो है कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर्स का प्रेजेंस जो है उसको मैंने एक वेरिएबल दिया हुआ है, ये बाद में आपको बता दूंगा कि मैंने हेल्थ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर्स को क्यों यहाँ पर मॉडल में इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे साथ y है, इस y को आप लोग कंसीडर कर लें कि दिस इज एंटीबॉडी लेवल, दिस इज द एंटीबॉडी लेवल, that's why the y tells us about antibody level of a patient or antibody level of an individual। this alpha naught ये हमारे साथ क्या है, this is the intercept factor, and this x1, the x1 is telling us about age of the respondent, and alpha 1, the alpha 1 is the slope factor, it means that what would be the changes in antibody level with the increase or decrease of age। अगर आपके साथ age change हो रहा है तो एज में इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से आपका एंटीबॉडी लेवल में क्या इफेक्ट आएगा। इसको मैं क्या करना कोशिश करता हूँ कि आई हैव टू रन अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, क्योंकि हमारा जो एक टॉपिक हमारे कंटेंट में है उसमें लीनियर रिग्रेशन मॉडलिंग करना है विद रिस्पेक्ट टू विद हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। तो मैं सॉफ्टवेयर की तो मैं इस पीसेस को यूज करूंगा, और डेटा जो मेरे साथ है आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, मैंने कोविड-19 रिलेटेड केपी का डेटा है उसको यूज करने की कोशिश करूंगा। सो देखो रिग्रेशन में हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के रिग्रेशंस है, उसमें हमारे साथ लीनियर रिग्रेशन भी है, बाइनॉमियल रिग्रेशन भी है, हमारे साथ स्केल फैक्टर्स भी है, और इसी तरह हमारे साथ मल्टीपल रिस्पांस फंक्शंस भी है, मल्टीपल इम्पुटेशंस, ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे साथ हम इस डेटा के साथ मतलब ये चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो चूंकि मैं रिग्रेशन या लीनियर मॉडल को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग रिग्रेशन में आ जाइए। रिग्रेशन में हमारे साथ लीनियर रिग्रेशन भी है, कर्व एस्टिमेशन भी है,
इसी तरह हमारे साथ पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स भी है, बाइनरी लॉजिस्टिक भी है, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक भी है, ऑर्डिनल, प्रोबेट। ये सब चूंकि मैं पहले भी एक दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को, तो उसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं लीनियर रिग्रेशन की तरफ आ जाऊंगा ताकि जो मैं एनालिसिस आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूँ हमारा काम यहाँ से हो जाए। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जिस वेरिएबल को हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर मेरे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल जो एंटीबॉडी है वो क्या है, एंटीबॉडी है। तो ये डिपेंडेंट में आ जाएगा। एज, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एज को मैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ले रहा हूँ। मतलब ये है कि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक इंडिविजुअल का, जब एक रिस्पोंडेंट का एज चेंज हो रहा है, एज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से उसकी एंटीबॉडी लेवल पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर स्टैटिस्टिक्स में मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस्टिमेशन में कर रहा हूँ। मॉडल फिट है, आर स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक सपोज मैं अपना लेके आना चाहता हूँ, डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक अगर आप लोग मॉडल में इंक्लूड करना चाहते हैं बेशक आप करें, क्योंकि डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक्स जो है इट टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमने कहा था कि जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एरर टर्म के साथ रिलेशनशिप हो तो उसको हम कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। एंड आई एम श्योर फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग econometrics 1, so they will have must studied the problem autocorrelation till now, and those students to whom I have taught the econometrics 2 or econometrics 1, I have detailed lectures on the topic. But still, if someone has any, like what we can say, if you have any problem in the topic, the problem of autocorrelation or multicollinearity or even heteroscedasticity, so you can ask me. I will share with you my previous lecture. We can like have another lecture on this topic. But for the time being, I would just say that I would not explain the Durbin-Watson and autocorrelation problem over here because you people will have studied it, or we can like discuss it again if you need it. So we will have the descriptive statistics over here, then we have case wise diagnostic, यहाँ पर जरूरत नहीं है उसकी। covariance matrix है, variance covariance matrix, ये भी आप लोग जो है econometrics 1 में बेसिकली हम पढ़ते हैं या statistics 2 में पढ़ते हैं, तो उसको भी यहाँ पर जो है मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जो है पढ़ चुके हैं। आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स देख ले या जो भी आप स्टैंडर्ड बुक उठा ले स्टैटिस्टिक्स की और इकोनॉमेट्रिक्स 1 की, वहां से आप लोगों को मिल जाएगी। पार्शियल एंड पार्शियल कोरिलेशन ये तो ऑलरेडी हमारे साथ पहले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक से तो अगर आप लोग डेटा कोलिनियरिटी मालूम करना चाहते हो, उसको स्टडी करना चाहते हो, तो ये यहाँ पर आप लोग जो है ये मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो ये तो हमारे साथ हो गया। कंटिन्यू आप क्लिक कर लें। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ये लीनियर रिग्रेशन, लीनियर मॉडलिंग, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लिक ऑन ओके। अब मैंने ओके कर दिया तो ये मेरे साथ यहाँ पर आ गया। ये कंप्लीट टेबल है। ये जब भी आप रिग्रेशन करेंगे तो ये कुछ टेबल आप लोगों के पास आ जाएंगे। एक टेबल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का है, एंटीबॉडी जो उसकी मीन वैल्यू हमारे साथ, एवरेज वैल्यू हमारे साथ 25.63 है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसके 25.8 है, और कुल हमारे साथ जो नंबर है, जो डेटा जितने लोगों से हमने डेटा लिया हुआ है 189 है। एवरेज एज 33.47 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एज जो है वो 10.07। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ एंटीबॉडी लेवल में डिविएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिविएशन एज। फिर पियर्सन कोरिलेशन है या वन टेल सिग्निफिकेंस वन टेल है। इसी तरह हमारे साथ एक और यहाँ पर टेबल है, जो वेरिएबल हमने एंटर की हुई है उसके बारे में, तो ये आपको उसके बारे में बता रहा है। जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डाली हुई है मॉडल में, मॉडल समरी है। मॉडल समरी हमारे साथ आर की वैल्यू 1.182 है। एडजस्ट आर स्क्वायर की जो वैल्यू है आपके साथ, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 0.03 है, और एडजस्टेड आर स्क्वायर क्योंकि
ये भी इकोनोमेट्रिक्स 1 का टॉपिक है कि आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। लेकिन सिंपल जब आप आर स्क्वायर की वैल्यू को एडजस्ट कर ले फॉर सर्टेन फैक्टर्स तो आप लोगों के साथ आ जाएगी एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर स्क्वायर जो है 0.03 है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल में 0.03 मतलब 33% चेंजेस जो है ये एक्सप्लेन कर लेता है आपके मॉडल में। बाकी जो 67% चेंजेस है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें ये इफेक्ट को क्या कर सकती है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो एंटीबॉडी लेवल है उसका रिलेशनशिप जो है सिर्फ और सिर्फ एज के ऊपर नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स कि आपका प्रीवियस जो है आपका क्या है कि प्रीवियस है मेडिकल हिस्ट्री वगैरह इस तरह के फैक्टर, आपका जेंडर, इवन ये देयर आर सो मेनी फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग योर एंटीबॉडी लेवल। सो आप सिर्फ एक एज के जरिए आप एंटीबॉडी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये मॉडल बता रहा है कि 33% changes in the dependent variable which is antibody. So 33% changes in the antibodies are explained by age, whereas the rest are 67% are explained by other variables. अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का अनोवा टेबल है। अनोवा टेबल की जरूरत नहीं है क्योंकि अनोवा जो है ये एक अलग कैटेगरी है मॉडल्स का। ये हम अपनी जगह पे जो है ये पढ़ेंगे। कोएफिशिएंट्स की जहां तक अब हमारे मॉडल है, अब देखो हमारा जो इंटरेस्ट का मॉडल है, इंटरेस्ट का जो हमारा टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल हमारे साथ ये है। ठीक है जी, ये हमारा सबसे क्या है, इंटरेस्ट का टेबल है हमारे लिए। अब ये जो हमारा मॉडल है, इस मॉडल को मैं भी इस तरह लिख सकता हूँ कि y i इज इक्वल टू इंटरसेप्ट की जगह मैं लिखूंगा इस अल्फा नॉट की जगह, मतलब इंटरसेप्ट की जगह मैं लिख लूंगा 10.062 10.062 प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, अब x1 है तो इस सॉरी अल्फा 1 है, इस अल्फा 1 की वैल्यू हमारे साथ ये है, ये हमारे साथ क्या है, ये इस अल्फा 1 की वैल्यू है। अगर आप अनस्टैंडर्डाइज देना चाहते हो या स्टैंडर्डाइज देना चाहते हो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैं अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर उसका कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट मैं ले लेता हूँ 0.64 दिस इज द स्लोप फैक्टर 0.465 और इसके साथ x1 लिख ले। अब जो एस्टिमेटेड मॉडल है उस एस्टिमेटेड मॉडल में हम व्यू को शामिल नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हमारा मॉडल अब एस्टिमेटेड हो गया। देखो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के साथ आपका एज सर से है नहीं, एज जो है आपका लेट्स सपोज उसको हम नल कंसीडर करते हैं, एज की वेरिएबल को हम मॉडल से एक्सक्लूड करते हैं, तो फिर भी आपको ये जो अल्फा नॉट की वैल्यू है, मतलब जो इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ये है कि अगर बंदे का एज बिल्कुल अगर आप उसको इग्नोर भी कर लें फिर भी आप लोगों का जो एंटीबॉडी लेवल होगा वो 10.062 होगा। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, x1 0.465 x1, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के साथ इनका अगर आप लोगों की एज में 1 यूनिट इंक्रीज आ रहा है, आप लोगों की एज सपोज मैं कह रहा हूँ कि there is 1 year increase in your age, then there will be 0.465 unit increase in the antibody level of the respondent। तो respondent जिससे जिनकी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उनके एज में अगर आप लोगों के साथ 1 ईयर इंक्रीज आ रहा है एज में, तो 1 ईयर इंक्रीज इन एज की वजह से आपका जो है क्या कहते हैं एंटीबॉडी लेवल उसमें 0.465 यूनिट जो है उसमें इंक्रीज आएगा। इसी तरह आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ अगर आप लोग बनाना चाहें तो आप लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। यहाँ से आप लोग ये आप जो एनालाइज है, एनालाइज में भी आई गेस यहाँ पे है, यस आप ग्राफिंग जो है ग्राफिंग ऑफ द वेरिएबल्स, यस ये ट्रांसफॉर्म डेटा में, यस
एक तो टेबल है, टेबल मुझे नहीं चाहिए, मुझे डेटा में ग्राफ्स चाहिए। ये ये ग्राफ है ना, कि अब इस डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो ग्राफ जो है हम दो वेरिएबल्स के दरमियान कर सकते हैं, या अगर आपके साथ 3 डायमेंशन वाला है तो उसकी फिर रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज है। अब यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एंटीबॉडी लेवल और एज का मैं क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। तो ये आप ओके कर ले, आप लोगों को ग्राफ इसका मिल जाएगा। यस, ये आपका ग्राफ आ गया जी। तो अब इसको आप ग्राफ से, ये जो डॉट्स, डॉट को आप मिला के ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको जस्ट ये बताना है कि 0 ईयर अगर आपका एज है, सॉरी 20 ईयर्स की एज में जो आपका है एंटीबॉडीज, यहाँ तक जो है 100 तक जो है वो जा सकते हैं। या अगर आपका 30 ईयर एज है तो एंटीबॉडी का लेवल आपका ये होगा। अगर आपका 40 ईयर एज है तो एंटीबॉडी का ये लेवल, 50 ईयर्स की एज में फिर एंटीबॉडीज का शायद ये लेवल है, इसी तरह 60 ईयर्स की एज में ये लेवल है। तो मतलब दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आप SPSS में भी कर सकते हैं, आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको आसान हो आप ग्राफ उसका बना सकते हैं। और हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो इकोनोमेट्रिक्स है या स्टेटिस्टिक्स है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आप लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस अगर आप करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके साथ प्रायर नॉलेज ज़रूरी है। आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का ग्राफ्स वगैरह, पाई चार्ट्स वगैरह, इन चीज़ों का नॉलेज जो है होना ज़रूरी है। तो ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि ग्राफिंग हम किस तरह करते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं आपको शो कर रहा था कि जो हमारे साथ रिग्रेशन के वेरिएबल्स है, रिग्रेशन की वेरिएबल का हम क्या कर सकते हैं, उनका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो अब जिस तरह, अब इसका ग्राफ जैसा मुझे बना रहा हूँ ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये चूंकि डॉट इन डॉट को आप लोग मिला लें, ये इस तरीके से जो है आप लोगों के साथ ये एक ग्राफ बन जाएगा। इस तरीके से क्या है, सो दिस इज, अब ये क्या है कि मतलब एज के साथ आपकी एंटीबॉडीज में फ्लक्चुएशन, कभी एंटीबॉडीज ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। सो एज के साथ फ्लक्चुएशंस जो आती है एंटीबॉडीज में, वो इस ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द लीनियर रिग्रेशन एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम बनाते किस तरह सॉफ्टवेयर में, तो ये उसका तरीका है। Still, if you have any question, if you have any ambiguity, you can ask me at any time, and you can also consult with your previous lectures. Thank you so much.